Hello students, today we are going to discuss the +1 chemistry subject 2 marks carrying question। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 2 ਮਾਰਕਸ ਕੈਰਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੇਅਰ why molality is preferred over the molarity in expressing the concentration of solution। so molarity ਤੇ molality ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ molarity ਤੇ ਇੱਕ molality, ਠੀਕ ਹੈ। molarity ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਮ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, molality ਨੂੰ small m ਨਾਲ। molality it is defined as number of moles of solute divided by volume of solution in a liter, ठीक है। similarly molality number of moles of solute divided by weight of solvent in 1000 ग्राम यूज़ करते हैं आप, ठीक है। सो उस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਐਮ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਮੋਲ ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਲੀਅਮ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੀਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਵੋਲੀਅਮ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟਰਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਟਰਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਲੀਅਮ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਈਲ ਦਾ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ 1000 ml ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਦਸ ਦਾ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵਸ ਓਨਲੀ ਮਾਸ ਵਿਚ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਕਿ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੂ ਨੋਟ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਹਾਇਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਮੋਲਰ ਔਰ 1 ਮੋਲਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1 ਮੋਲਰ ਅਤੇ 1 ਮੋਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਮੋਲਰ ਐਕੁਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਵ ਹਾਇਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੈਨ 1 ਮੋਲਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। molar solution contains 1 mole of solute in 1 molar solution contain 1 mole of solute in 100 gram of solvent। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੋਲਰ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਇਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ 1 ਮੋਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। next है state and explain the law of conservation of mass। so it is defined as a mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। for example ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ burn with combine with oxygen to yield a water, the mass of water formed is equal to the mass of hydrogen and oxygen consume। ਜਿੰਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ state and explain law of definite proportion। a sample of pure compound always consists of same element combined together in a same proportion by mass। ਸੋ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ 1 ਮੋਲ ਆਫ ਅਮੋਨੀਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੰਟੇਨ 1 ਐਟਮ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ 3 ਐਟਮ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇੰਟੂ ਐਂਡ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ हैं। दिस इज अ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट एक्सप्लेन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 or more chemical compound then the ratio of mass of these element which combine with a fixed mass of other vary simple whole number ਰੇਸ਼ੋ ਟੂ ਵਨ ਅਨਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਮਾਸ ਆਫ ਵਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਈ ਜਾਏ ਮਾਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਵਿਦ ਫਿਕਸ ਮਾਸ ਆਫ ਅਨਦਰ that will be a simple whole number ratio। for example carbon combine with oxygen, carbon oxygen combine करती carbon monoxide बनती।
कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सो ये कार्बन 12 ग्राम है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज 28 ग्राम। सिमिलरली कार्बन 12 ग्राम है जो 32 ग्राम है एंड 44 ग्राम है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द एवोगाड्रो लॉ। Sorry, it states that the equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules directly। equal volume of all gases contain equal number of molecules, ठीक है जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। सो इट मीन्स दैट 1 ml of hydrogen oxygen ammonia or a mixture of gases taken at the same temperature and pressure contain the same number of molecules होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म एटम। An atom is the smallest individual particle of element which can take part in chemical change, the chemical change which participate करता। Next है molecule। Molecule is the smallest particle of an element of a or a compound that can exist in free or and retain all its properties, ठीक है। Next question है define a mixture। A mixture contain two or more substances present in any ratio which are called as a components। A mixture may be homogeneous ਤੇ heterogeneous हो सकती है, ठीक है नी। So next है difference between mixture and compound। mixture है it consists of two or more element compound or both which are not chemically combined। identity consists of two or more element combined by chemical bonds, ठीक है। each component retain the its individual properties, therefore the formation of mixture is a physical change। and compound which each component loses its individual proportion, the compound formed has a new properties, therefore it's a formation of a chemical change है, ठीक है। नेक्स्ट गल करते हैं ਆਪਾਂ दैट इज़ ए नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर। सो इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 2 ਮਾਰਕਸ ਕਰਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ दैट इज़ ए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड दैट इज़ ए फॉर्म्ड बाई हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है। एंड पाई बॉन्ड दैट इज़ ए साइड वाइज ओवरलैपिंग। एंड सिग्मा बॉन्ड दैट इज़ ए मैक्सिमम ओवरलैप रीजन कवर ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मिनिमम ओवरलैप रीजन कवर ਹੁੰਦਾ। sigma bond that is a symmetrical to rotation, these orbitals are symmetrical to rotation। and pi bond that is a not symmetrical to rotation। next that is a strong bond। सिग्मा बॉन्ड ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ दैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा हेड टू हेड ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਕ बॉन्ड ਹੋਏਗਾ, ठीक है जी। जिस तरह सिग्मा हेड टू हेड ओवरलैपिंग शो करता पाया दैट इज़ ए साइड वाइज ओवरलैपिंग। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन बाई एडिशन ऑफ वेव फंक्शन दैट इज़ ए फॉर्मेशन बाई subtraction of wave function, ठीक है। and bonding it is formed by combining the same sign lobes and formed by combining the different opposite sign lobes। bonding that is a higher electron density होएगी and the anti bonding that is a negligible electron density। bonding depend upon the two nuclei and anti bonding push the nuclei apart। and bonding ਦੇ ਵਿੱਚ lower energy greater stability, lower energy ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ stability ज़्यादा होएगी, तो anti bonding ਦੇ ਵਿੱਚ higher energy होएगी तो stability घट होएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that is a डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड पहली गल है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द हाइड्रोजन अटैच टू एन इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम। हाइड्रोजन होएगा तो एक इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम हो सकता, जिस तरह फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन लैने ਜਾਂ नाइट्रोजन ਲੈ ਲੈਣੇ। सो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਫਰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ दैट इज़ ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ठीक है। ठीक है जी। सो इस तरह इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम तो हाइड्रोजन के विचकार जी बॉन्डिंग होंगी है दैट इज़ ए इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट इज़ कॉल्ड एज ए हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड तो कोवलेंट बॉन्ड से डिफरेंस की है दैट इज़ ए डायपोल अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व द डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है जी। एंड कोवलेंट बॉन्ड दैट इज़ ए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म्ड बाई इलैक्ट्रोनैगेटिव एंड हाइड्रोजन एटम। and covalent bond that is formed highly electronegative and another atom। hydrogen bond that is a small strength and covalent that is a highly strength। hydrogen bond that is a larger bond होएगा तो covalent that is a small bond होएगा, ठीक है जी। सो हाइड्रोजन बॉन्ड आप डिफाइन किया। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की गल करते हैं तो दो टाइप्स से इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो गल करते हैं तो उदों आप गल करते हैं दो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड की आप गल करिए। हाइड्रोजन फ्लोराइड दोनों के विचकार एक हाइड्रोजन तो इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम जोड़ा है दैट विल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की गल करते हैं तो इको एक मॉलिक्यूल के विचकार एक इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम भी होएगा तो एक हाइड्रोजन भी होएगा। सो दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। एग्जाम्पल है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, जिस तरह एग्जाम्पल साढ़े को है इतने
ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਾਮੋਲੀਕੂਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਥੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਿਨੋਲ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ OH ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਾਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਾਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਟਰਾਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ resonance and condition for resonance। ठीक है, so resonance है when a molecule cannot be represented by a single structure but its characteristics properties can be described by two or more than two structures, then the actual structure is called as a resonance hybrid of these structure। ठीक है, ਸੋ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦ ਸੇਮ ਐਟੋਮਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਦ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਡ ਦ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦ ਨੀਅਰਲੀ ਸੇਮ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਦ ਸਟਰਕਚਰਸ should be so written that negative charge is present on the electronegative atom and positive charge on the electropositive atom। so ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਆਫ ਵਸੈਪਰ ਥਿਊਰੀ ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਹੈ। ਦ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਮੋਲੀਕੂਲ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन ए वैलेंस शेल टेंड टू रिपेल वन अनदर, ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नेगेटिवली चार्ज। थर्ड है द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड टू ऑक्यूपाई द पोजीशन इन स्पेस दैट मिनिमम रिपल्शन occur। फोर्थ पॉइंट है द वैलेंस शेल इज टेकन एज ए sphere with the electron pairs and the fifth है that is a repulsion between the lone pair and lone pair electron is different than that of two bond pair electron as a trend lone pair repulsion is greater than the lone pair bond pair repulsion is always greater than the bond pair repulsion। so ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਆਫ ਵਸੈਪਰ ਥਿਊਰੀ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ why NF3 is pyramidal while BF3 is triangular planar, so both are tetrahedral in nature। so in case of NF3 the pyramidal shape in its geometry, there are 3 bond pairs and 1 lone pair around the nitrogen atom due to presence of 2 lone pairs on nitrogen geometry is regarded as pyramidal, and while BF3 has only 3 bond pairs as there is no lone pair present in BF3 the geometry is regular and regarded as a trigonal planar। ठीक है जी। सो BF3 NF3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਸ਼ੇਪ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। BF3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਓਨਲੀ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਗੋਨਲ ਪਲੇਨਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਇਹਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਇਨ NH3 ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨ PH3। ਸੋ NH3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ then phosphorus। ठीक है, therefore the bonding electron pair lies near to nitrogen atom। ठीक है, नाइट्रोजन ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ in ammonia than the phosphorus in PH3। the electron density on nitrogen atom is greater than that of phosphorus atom। it result in the greater repulsion between the bonding electron pair around the nitrogen। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਆਵਲੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਉਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ 107 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ PH3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਫਜ਼ਾਨ ਰੂਲ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਪਾਰਸ਼ਲ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਜ਼ਾਨ ਰੂਲ ਪਾਰਸ਼ਲ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਜ਼ਾਨ ਰੂਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫਜ਼ਾਨ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਮਾਲਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਕਟਾਇਨ ਐਂਡ ਲਾਰਜਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਅਨਾਇਨ greater is the covalent character of ionic bond। second है greater the charge of cation, greater is the covalent character of ionic bond। third the cation have small size and change the one of the electronic configuration enhancement D NS0 is more polarizing than one of the noble gas configuration NS2 NP6। so main point है small size cation होना चाहिए, large size anion होना चाहिए, उन्नी polarizability ज़्यादा होएगी, जिन्नी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा उन्ना कोवलेंट करैक्टर भी उसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वाई NH3 एंड NF3 हैव डिफरेंट डाइपोल मोमेंट। सो अगेन एग्जाम्पल है, बहुत वधिया एग्जाम्पल है। सो इन केस ऑफ NH3 एंड NF3 बोथ द मॉलीक्यूल हैव पिरामिडल शेप, दोनों के कोल पिरामिडल है क्योंकि दोनों के कोल लोन पेयर है, आप फिगर के देख रहे हैं।
lone pair of electron on nitrogen atom, ठीक है, and the fullerene is more electronegative than nitrogen but resultant dipole moment of NH3 is greater than that of। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੁਲਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ H ਤੋਂ N ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ F ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਐਰੋ। ਸੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ F ਵੱਲ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਐਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਵਰਡ ਤੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ NH3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਰੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰਨ ਤੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਵੱਲ ਅਬਵ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ NF3 ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ऑर्बिटल dipole due to the lone pair is in the same direction as the resultant dipole moment of NH bond, but in NF3 the orbital dipole in the direction opposite to NF bonds and decrease in resultant NF bond dipole moment, ठीक है जी। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ next chapter that is a numerical based question, ठीक है। calculate the enthalpy of formation of benzene represented the following data 6C carbon plus 3H2 to form a benzene। the standard enthalpy of combustion of benzene is -3266.0, ਆਹ ਵਾਲੀ value given है। enthalpy of formation of carbon dioxide and water are also given, ठीक है। required ਸਾਡੇ कोई equation की बन जाएगी, पहली गल 6 carbon plus 3H2 बेंजीन, ठीक है, जो गिवन है। सो नेक्स्ट की हैगा सानू एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन बेंजीन, जो गिवन स्टेटमेंट है कंबस्टन गिवन है तो ऑक्सीजन डिपेंस विच बर्न करेगी दैट विल फॉर्म ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, आ वाली डेल्टा एच सानू गिवन है। सैकेंड सानू गिवन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन आ वाली लिख ली है, वाटर की फॉर्मेशन लिख ली है। सो इन्होंने तिना क्वेश्चन तो आप फस्ट क्वेश्चन ड्राइव करना चाहते हैं, डेल्टा एच वैल्यू फाइंड करनी। सो ये देख सानू क्लीयर हो रहा कि सैकेंड तो थर्ड तो फोर्थ क्वेश्चन अगर आप सम अप करते हैं कार्बन तो हाइड्रोजन सम अप होंगे, तो सैकेंड वाली क्वेश्चन अगर माइनस करते हैं ये तो फिर ही साढ़े को आ वाली फस्ट क्वेश्चन की फॉर्मेशन हो सकती है। सो पहले आप बैलेंस करा जिदा 6 कार्बन चाहिए सानू तो इस क्वेश्चन थर्ड वाले क्वेश्चन 6 नाल मल्टीपल करा, 3H2 चाहिए तो आपू की है फोर्थ क्वेश्चन थर्ड 3 नाल मल्टीपल करा आप, ठीक है। फिर इन्होंने दोनों सम अप करके तो लास्ट विच सबट्रैक्ट करांगे जी साढ़े को सैकेंड इक्वेशन है, ठीक है। सो वी विल गैट द डेल्टा एच वैल्यूज़, डेल्टा एच वैल्यू सानू आ रही है दैट इज़ 49.6 किलो जूल, ठीक है। नैक्सट गल करते हैं नैक्सट न्यूमेरिकल दी, द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है फॉर कार्बन दैट इज़ ए ग्रेफाइड फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। सो कार्बन ग्रेफाइड फॉर्म कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म ए कार्बन डाइऑक्साइड, डेल्टा एच वैल्यू गिवन। सिमिलरली वाटर की फॉर्मेशन है, डेल्टा एच वैल्यू गिवन है। सिमिलरली मीथेन की फॉर्मेशन है वो भी गिवन सानू। सो फस्ट क्वेश्चन जिहदे लई आपां डेल्टा एच फाइंड करांगे आ वाली क्वेश्चन है, ठीक है जी। सो जो गिवन है वो तिन्ने क्वेश्चन लिख लवांगे आपां। सो इन्हां तिन्नां कंबाइन करांगे इस इक्वेशन नूं कि सानू फस्ट क्वेश्चन की फॉर्मेशन मिले। सो ये सैकेंड तो थर्ड क्वेश्चन अगर आप कंबाइन कर दिता जाए तो सो सब तो पहले मल्टीप्लाई करांगे थर्ड क्वेश्चन बाई 2, ठीक है। सो क्योंकि सानू 2H2 इत्थे चाहिए, सो एड अप टू सैकेंड क्वेश्चन के सम अप कर देवांगे। सो थर्ड क्वेश्चन नू 2 नाल मल्टीपल करांगे, सो ऐड कर देवांगे, सानू वाली क्वेश्चन मिलती पई है। सो ये वाली क्वेश्चन जी है 5 क्वेश्चन है, फोर्थ तो 5 क्वेश्चन दोनों एडअप करके साढ़े को फॉर्मेशन होती पई कार्बन प्लस 2H2 एंड फॉर्मेशन ऑफ मीथेन द डेल्टा एच वैल्यू आ रही है साड़ी की 74.8 किलो जूल। नैक्सट क्वेश्चन है कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। साढ़े को कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन है, वाटर है एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो वाटर दोनों की है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन पता करांगे, अगर मीथेन की फॉर्मेशन है इट मीन सानू पहले इक्वेशन पता होनी चाहिए है कार्बन प्लस 2H2 टू फॉर्म ए दैट इज़ CH4 चाहिए। सो इस इक्वेशन के लिए सानू सम अप करना पेगा कार्बन वाली इक्वेशन तो 2H2 वाली इक्वेशन, पहलियां दोनों सम अप करना पेगा तो थर्ड के अगर माइनस करांगे तो ईजिली सानू मिल जाएगा, ठीक है जी। सो यही आप करांगे इत्थे रिक्वायर्ड क्वेश्चन यही है कि फस्ट तो सैकेंड सम माइनस थर्ड करांगे तो सो क्वेश्चन सानू मिल जाएगी। सो डेल्टा एच वैल्यू सानू मिल गई, डेल्टा एच रिएक्शन वैल्यू कोरसपोंड टू 2 मोल ऑफ अमोनीया के लिए सानू मिलती पई
ਸੈਕਿੰਡ ਸਬ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਥੈਲਪੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अगेन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन neither be created nor destroyed but it can change from one form to another form. This is the first law statement. It can also be stated that the sum of total energy of universe remain constant, and next energy of the system that is isolated from its surrounding remains constant. Second law of the statement, the according the law states that all spontaneous process or naturally occurring process are thermodynamically irreversible. This law and also we state that the entropy of universe always increase in the course of every spontaneous process. Delta S universe always greater than 0. This is the second law. And third law of thermodynamics, that this law given that the nearest, and it can be stated that entropy of an ideal or perfectly crystalline solid may be taken as 0. Delta S total equal to 0, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी हमेशा 0, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाता स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ है कंसीडर द 3 सिस्टम ए बी सी इफ द सिस्टम ए इज़ इन द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद सी दैन बी इज़ ऑल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सी। सो इसे ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੇ C ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, B ਤੇ C ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ A ਤੇ B ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੀਸ ਆਰ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ मैथमैटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो फर्स्ट लॉ दे थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सम ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज बी कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज इनटू 2 ways, heat absorbed or given out by the system and work done on the system or by the system. Suppose internal energy of the system U1 and heat absorbed by the system, that is a Q. Total increase in energy U1 plus Q. So if work done on the system, that is a U2 become equal to U1 plus Q plus W. So total energy of the system U2 equal to U1 plus Q plus W, and U1 internal energy ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲਿਖਾਂਗੇ, U2 minus U1 equal to Q plus W, that is equal to change in internal energy. It is written as delta U. This is a delta U equal to Q plus W. This is a first law thermodynamics mathematical statement. Delta U is here change in internal energy, Q is heat absorbed by the system, and W that is work done on the system, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज। सो एज वी नो डी डब्ल्यू वर्क डन इक्वल टू पी डी वी एंड पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। सो ये पी की वैल्यू ये पुट करा आप, पी इज इक्वल टू एन आर टी और वी ये पुट करा तो डी डब्ल्यू की बन जाएगा एन आर टी और वी डी वी। सो वर्क डन एक्सप्रैशन जो कंप्रैशन की गल करा तो इट शुड टेक द नैगेटिव साइन ये टेक करा आप, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एन आर टी और वी डी वी। सो इंटीग्रेट करांगे दैट इज़ ए V1 तो V2, जिस तरह वॉल्यूम चेंज करता पे डेल्टा डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 माइनस NRT और V डी वी। सो कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड हो जाएंगे, डी वी ओवर वी बचेगा, दैट इज़ ए 1 ओवर V कैन बी रिटन एज ए log V, नेचुरल log V, एंड लोअर कंसनट्रेशन द अपर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। सो इनू सॉल्व करांगे लॉग नू तो अपर लिमिट पहले फिर माइनस लोअर लिमिट आ जाएगी। सो इसनू सॉल्व करांगे तो नेचुरल लॉग V2 ओवर V1 आ जाएगा। सो ये वाला साढ़े को वर्क डन आ जाएगा। सो इसे चीज़ नू अगर आप नेचुरल लॉग नू लॉग बेस 10 कन्वर्ट करांगे तो आप लिखांगे माइनस 2.303 ना मल्टीपल करांगे 2.303 NRT लॉग V2 ओवर V1, ठीक है, ये साढ़े को टर्म आ जाएगी। सो ये सी साढ़े को वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज द एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस है द प्रोसेस हुज डायरेक्शन गेट रिवर्स्ड एट एनी स्टेज बाय डूइंग ए स्मॉल चेंज इन वेरिएबल लाइक टेम्परेचर प्रेशर। इन दिस प्रोसेस द सिस्टम remains in the state of equilibrium with the surrounding at every moment. Irreversible process, the process which is carried out so rapidly that system does not get a change, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सो ये सी साढ़े को रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, द प्रोसेस कैरिड आउट सो रैपिडली दैट डज नॉट गेट चांस टू अटेन द इक्विलिब्रियम, ठीक है।
सो जोड़ा की है रिवर्स नहीं होएगा तो इक्विलिब्रियम नहीं अटेन करेगा, दैट इज़ इरिवर्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्सप्लेन द टर्म इंथैल्पी। इंथैल्पी इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। मैथमेटिकली रिटन एज एच, दैट इज इंथैल्पी, इक्वल टू यू इंटरनल एनर्जी, पी वी दैट इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम टर्म, ठीक है जी। सो नेक्स्ट है प्रूव दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अगेन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है between the delta H, change in enthalpy, change in internal energy and change in number of molecules, R that is a gas constant, T is temperature. Consider a reaction at constant pressure, that is a reactant A is converted into the product B, and change in enthalpy can be written as delta H, it is equal to HB minus HA. HB is the enthalpy of a B product and HA is the enthalpy of a reactant. Next as we know the enthalpy, that is H is equal to U plus PV, ठीक है। for reactant that is a UA is the internal energy and UV for the internal energy product, VA is the volume term for reactant and VV with the volume term of a product. So HA can be written as UA plus PVA at constant pressure. Similarly HB can be written as UV plus P of VV. So put the value in change in enthalpy term. So HB minus HA can be written as UV plus PVB minus UA minus PVA. So it can be written as UV minus UA, that is a change in internal energy delta U, and this term can be written as P into BV minus PV, delta V change in volume. So it can be written as delta H is equal to delta U plus P delta V. So now as we know, in case of ideal gas equation, that is the PV is equal to nRT, VA is the volume term of reactant, Na is the number of moles, and VB is the volume for B product, and NB number of moles of product. So similarly it can be written as PVA equal to NaRT, PVB equal to NBRT. Here R and T are gas constant and T temperature, these are also a constant term, ठीक है जी। So it can be written as PVV, P delta V can be written as RT delta N. So for n moles of gas, P delta V equal to delta NgRT. So put this value in equation 2, we will get delta H is equal to delta U plus delta NgRT. Delta H that is the change in enthalpy, delta U change in internal energy, delta Ng change in number of moles of gases, R gas constant, T temperature. So this is the relationship between delta H and delta U. This is also a most important question. Next question है define exothermic and endothermic process. In case of exothermic process, the reaction in which the heat energy is given out, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ heat energy out ਹੋਏਗੀ, delta H value negative sign ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, E plus B to form a C plus D plus Q, ठीक है। जिस तरह एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन है, डेल्टा H minus 393.5 किलो जूल। sorry this is the exothermic reaction. Next endothermic reaction, the reaction in which the heat energy is absorb, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ absorb ਹੋਏਗੀ, ठीक है। A plus B plus heat absorb हो रही है, form C plus D, ठीक है। Similarly example है नाइट्रोजन ਤੇ ऑक्सीजन गैस combined with NO formation, so delta H value 180 किलो जूल, ठीक है। So next question करते हैं, what are extensive and intensive property again this chapter, that is extensive the properties of system whose depend upon the quantity of a substance present in the system are called as extensive property. Intensive ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ in ਤੋਂ independent, the properties which do not depend upon the quantity of substance present in the system are called as intensive property. Extensive ਦੀ example ਹੈ mass volume work energy, ਤੇ intensive ਜਿਹੜੀ independent ਹੈ that is a pressure temperature density viscosity melting point boiling point, ठीक है। this is also important question. नेक्स्ट है हसस लॉ एक्सप्लेन करांगे। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द एंथैल्पी चेंज इन ए पार्टिकुलर रिएक्शन इज सेम वैदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टैप और नंबर ऑफ स्टैप। मान लो कि आप ए तो बी तक जाना चाहते हैं, सो चाहे तो आप ए वाला पाथ फॉलो कर सकते हैं फर्स्ट, चाहे आप ट्रैक आ वाला फॉलो करिए जिहदे विच दो वे है, ठीक है। फर्स्ट है तो चाहे आ वाला हैगा जिस दो स्टैप हैगे। सो कहने का मकसद ये है कि इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच वैल्यू चाहे एक स्टैप के करिए काम, चाहे आप दो स्टैप के काम करिए, या एक तो जगह दूसरी जगह जाने के लिए दो वे यूज़ करिए, दो ट्रैक, मतलब एक विच पॉइंट जिथे थ्रो बाय थ्रो घूम के जावांगे आप, सो वो की इंथैल्पी चेंज दोनों के थ्रू सेम होएगी, ठीक है। वैदर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टैप और इन द नंबर ऑफ स्टैप्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन तो
कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन है, अगर एक स्टैप से देखा जाए तो डेल्टा एच वैल्यू इन्नी है। अगर पहले कार्बन तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई जाए डेल्टा एच वैल्यू इन्नी, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रैपरेशन करते हैं ਤਾਂ वाली ये दो स्टैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। टोटल डेल्टा एच देखा जाए तो फिर भी सेम है, ठीक है। सो इट मीन्स की है कि वैदर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप और इन द नंबर ऑफ स्टेप टोटल डेल्टा एच वैल्यू सेम, दैट इज गिवन बाय द हासेस लॉ, ठीक है। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैस अब्जॉर्व 120 जॉल 120 इतने जॉल ऑफ हीट एक्सपैंड अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर 1.10 atmospheric pressure form a volume of 0.5 liter to the 2 liter. What is the change in internal energy? As we know, work of expansion W equal to minus P delta V. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ delta V that is a change in volume, V2 minus V1 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 1.1 ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ। ਸੋ P delta V ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ -1.650 ਲੀਟਰ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ। सो 1 लीटर एटमोसफेरिक इक्वल टू 101.3। सो इतों सानू P डेल्टा भी की वैल्यू मिल जाएगी। सिंस वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज़ वर्क डन W की वैल्यू मिल गई सानू, एंड हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम 120 जॉल सानू गिवन है, ठीक है। सो डेल्टा यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्वेश्चन डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W, जो उन्होंने वैल्यू पुट करांगे तो आंसर निकालेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल न्यूमेरिकल। नैक्सट दैट इज़ अ चेंज द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन अमोनीया की प्रोडक्शन के एंथैल्पी चेंज है is -92.38 किलोजोल। वट इज़ द डेल्टा यू एट 298 कैलविन। डेल्टा एच तो डेल्टा यू दे अगर देखा जाए दोनों रिलेट आप रिलेशनशिप किया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। सो ये N2 + 3H2 फॉर्म है अमोनीया। सो डेल्टा Ng हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 है तो -3 तो 1 है टोटल 4, 2 - 4 दैट इज़ -2 आ जाएगा। टी टैंपरेचर 298 कैलविन है। सो डेल्टा एच वैल्यू आ जाएगी साढ़े को -92.38 किलोजोल, दैट कैन बी रिटन एज -92.380 जॉल, ठीक है। सो आर गैस कॉन्स्टेंट दैट इज़ 8.314 जॉल पर कैलविन पर मोल। सो नैक्सट साढ़े को आ जाएगा अगर सोल्व करांगे इनू क्वेश्चन के पुट करांगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। सो सोल्व करांगे तो डेल्टा यू की सानू वैल्यू इत्थे मिल जाएगी, ठीक है। इसी न्यूमेरिकल। सिमिलरली नैक्सट एक न्यूमेरिकल है द चेंज द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन अगेन अमोनीया गैस के लिए गिवन है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनीया दे कैलकुलेट करांगे। अमोनीया गैस के 2 मॉलीक्यूल दी हुई वैल्यू, ठीक है, तो एक मॉलीक्यूल के निकालांगे तो 2 डिवाइड कर देवांगे, ईजिली अपन न्यूमेरिकल कर पावांगे, ठीक है। नैक्सट है अगेन इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है जी बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर न्यूमेरिकल होंगे जोड़े अगेन इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दीज आर क्वेश्चन जोड़े है इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अनदर न्यूमेरिकल्स। सो जिस तरह साढ़े को CH2 डाईक्लोरोमीथेन की गल करते CH2Cl2 है, दैट इज़ ए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैन बी गिवन हेयर C कार्बन + 2H + 2Cl है। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CHCl आर गिवन एज 414 एंड 330 किलोजोल पर मोल, ठीक है। सो ये इन दिस रिएक्शन 2 CH देखा जाए तो एक CH दूजा CH, एक Cl तो 2 Cl, 2 Cl CCl बॉन्ड है तो 2 CH बॉन्ड है फॉर्मेशन। सो ये फॉर्मूला सब तो इंपोर्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन कैन बी काउंट एज टोटल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। यही एक इदा का न्यूमेरिकल है जिद्दे कहना बॉन्ड एंथैल्पी की आप ओपोजिट फॉर्मूला यूज़ करते हैं रिएक्टेंट की माइनस प्रोडक्ट की, ठीक है। सो ये सब तो पहले डेल्टा एच इज इक्वल टू ट्वाइस द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड प्लस ट्वाइस द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl बॉन्ड। सो ठीक है जी, आ वाला हो जाएगा माइनस आ जाएगा साढ़े कोल कहता प्रोडक्ट के कोई भी कहता मॉलीक्यूल फॉर्म च नहीं है, इस करके उन्होंने वैल्यू 0 है। तो टोटल साढ़े को सोल्व करांगे तो साढ़े को आ वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सिमिलरली न्यूमेरिकल इथीन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो ये एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी डाटा गिवन CH बॉन्ड का V1 है, O डबल बॉन्ड ओदा, C डबल बॉन्ड ओदा OH तो C डबल बॉन्ड ओदा C डबल बॉन्ड C का। सो ये कहता की है अगेन डेल्टा H0, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज टोटल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करांगे। रिएक्टेंट के देखा जाए तो CH 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 4 CH बॉन्ड है, 4 CH तो 1 बॉन्ड है CC का, ठीक है, CC का
प्लस 3 ऑक्सीजन दे ते -4 साढ़े कोल देखा जाए तो एक इधर है एक इधर है 2 तो टोटल डिवाइस ना करके 4 साढ़े को सी डबल बॉन्ड ओ दे। इसी तरह OH दे बॉन्ड एक इधर 2 तो 2 तो 4 तो टोटल ही 4 बॉन्ड एंथैल्पी दूसरी बनती पई है। ठीक है 4 टाइम यदी बनती पई है। सो इनू सॉल्व करांगे साढ़े कोल तो वाला साढ़े को इन्नी वैल्यू आ रही है -964 किलो जूल पर मोल। ठीक है सो ये सी बॉन्ड एंथैल्पी के बेसिस के न्यूमेरिकल जोड़े इंपोर्टेंट है। नैक्सट आप गल करते हैं a system absorb again on first law of thermodynamics absorb 500 joule of heat and does work ਜਿਹੜਾ heat absorb ਕੀਤੀ Q वैल्यू given है work done that is a ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ surrounding ਦੇ ਵਿੱਚ it mean negative sign -50 joule so delta U ਦਾ relationship Q plus W solve ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ change in internal energy। ਠੀਕ ਹੈ this is a easily method। next that is in a process 701 joule of heat is absorbed by a system and 394 joule of work is done by the system। What is change in internal energy of the process? Heat absorbed by the system that is a 701 joule है, work done that is a -394 है तो डेल्टा U निकाल लवांगे। ठीक है सिमिलरली the enthalpy change for the reaction is given है डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus डेल्टा NG/RT। ठीक है डेल्टा H सानू गिवन है तो बाकी चीज़ा भी आप निकाल लवांगे डेल्टा NG भी निकल जाएगा तो डेल्टा U आप इतों निकाल लवांगे। ठीक है नैक्सट दैट इज द इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U फॉर ए रिएक्शन। ठीक है वो सानू गिवन है व्हाट इज डेल्टा U अगेन बाय यूजिंग फार्मूला डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। ठीक है डेल्टा U भी सानू गिवन है जाउल च कन्वर्ट कर लाँगे डेल्टा NG चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स 1 है एंड 2 है 1 -2 तो इधर भी 1 2 + 1 3 तो -2 आ जाएगा। R वैल्यू गिवन है T गिवन है तो इस इक्वेशन च पुट करांगे तो डेल्टा H नूं आपां ईजिली कैलकुलेट कर पावांगे। नैक्सट आ जाती साढ़े कोल दैट इज ए इक्विलिब्रियम चैप्टर दे विच बफर सोल्यूशन की है तो एसिडिक तो बेसिक बफर की है। सो बफर सोल्यूशन द सोल्यूशन विच रजिस्ट द चेंज इन pH वैल्यू जोड़े की है pH वैल्यू चेंज नहीं करते वैदर द एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। ठीक है दैट आर कॉल्ड एज बफर सोल्यूशन। सो ये टाइप्स है दो एसिडिक तो बेसिक। एसिडिक बफर सोल्यूशन कंटेन इक्वोमोलर क्वांटिटीज ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एग्जाम्पल एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। ठीक है बेसिक बफर दे विच बफर सोल्यूशन कंटेन इक्वोमोलर क्वांटिटीज ऑफ वीक बेस एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है आ वाली दोनों एग्जाम्पल एसिडिक तो बेसिक बफर दी। नैक्सट ली-चैटले प्रिंसिपल अफेक्ट है। सो इफ द कंसनट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज इंक्रीज द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। नैक्सट आप पूरी तरह एक्सप्लेन करांगे। सिमिलरली सैकेंड प्रोसैस भी करते हैं कि कंसनट्रेशन जेकर इंक्रीज द कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर कंसनट्रेशन आप प्रोडक्ट की चेंज करांगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। नैक्सट है आइस मेल्ट स्लोली एट हायर एल्टीट्यूड एक्सप्लेन। एग्जाम्पल है कहना मेल्ट एल्टीट्यूड से जी आइस है जी मेल्ट करती पई स्लोली मेल्ट करती पई उसका कारण की है। द मेल्टिंग ऑफ आइस इज फेवर्ड एट हाई प्रेशर बिकॉज देयर इज ए डिक्रीज इन वॉल्यूम in the forward direction since at a higher altitude atmosphere pressure is low pressure उत्थे low ਹੁੰਦਾ therefore the ice melts slowly कहना क्योंकि ice melting of ice favor the high pressure melting ice होएगी high pressure ते उत्ते पर उत्थे की देखते हैं altitude ते pressure low ਹੁੰਦਾ इस करके कहता की है वो slowly melt करती है। next that is a common ion effect की ਹੁੰਦਾ the suppression of a degree of a dissociation of a weak acid or a weak base by the addition of a strong electrolyte containing the common ion that is called as a common ion effect। ठीक है नेक्स्ट है कुछ एग्जाम्पल व्हाट इज मीन बाई कंजुगेट एसिड बेस पेयर। सो फाइंड द कंजुगेट एसिड बेस पेयर द एसिड बेस पेयर जिस तरह HNO2 है इधर NO2 नेगेटिव होएगा बेस पेयर HCN नेगेटिव है HCN होएगा HClO4 है ClO4 नेगेटिव हो जाएगा F नेगेटिव है तो HF हो जाएगा OH नेगेटिव है तो वाटर हो जाएगा O2 नेगेटिव है तो कार्बोनेट हो जाएगा जब आई कार्बोनेट हो जाएगा S2 नेगेटिव है तो HS हो जाएगा। ठीक है जी नैक्सट दैट इज न्यूमेरिकल कुछ है इक्विलिब्रियम चैप्टर के वट इज़ केसी ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम जिहदे SO2 की सानू वैल्यू गिवन है O2 की गिवन है SO3 की गिवन है इक्वेशन सानू गिवन है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट द डेफिनेशन के अकॉर्डिंग की होंगे कि कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद द रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट। ठीक है SO3 पावर 2 आ जाएगा SO2 पावर 2 O2 हुण इन्हां सारिਆਂ की कंसनट्रेशन वैल्यू जो सानू गिवन है पुट करांगे तो सॉल्व करांगे तो आंसर ईजिली आ जाएगा।
देखने में बहुत डिफिकल्ट है बट सिंपल नूमेरिकल होंगे, ठीक है। सिमिलरली डिटरमिन द केसी वैल्यू, अगेन केसी ते केपी का रिलेशनशिप सानू पता केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी दी पावर डेल्टा एन होंदा। सो इस तरह केसी इक्वल टू केपी आर टी दी पावर माइनस डेल्टा, डेल्टा एन जी पता सानू निकालना, तो केसी तो आप ईजिली निकाल पावांगे, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड न्यूमेरिकल भी, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर अ वाटर गैस दैट इज ए कार्बन प्लस वाटर फॉर्म ए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर दैट इज ए द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन एट 1000 Kelvin is minus 8.1 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा जी नोट का रिलेशनशिप की होंगे सानू पता माइनस 2.303 आर टी हेयर आर कैपिटल आर टी लॉग के, ठीक है। लॉग के इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नोट ओवर 2.303 आर टी, डेल्टा जी नोट इक्वल टू गिवन है सानू, ठीक है। टी भी गिवन है, आर भी गिवन है। सो लॉग के की आ जाएगा -8.1 ऊपर, नीचे आ जाएगा वाली वैल्यू पुट करांगे तो सॉल्व करांगे साढ़े को इन्नी वैल्यू आ जाएगी, तो एंटी लॉग लवांगे उसका वैल्यू 2.64 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो नैक्सट है दैट इज साढ़े को कैलकुलेट डेल्टा जी नोट फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन, ठीक है। ऑक्सीजन टू ओजोन के देखा जाए तो के पी वैल्यू सानू गिवन है, तो डेल्टा जी नोट पता करनी, डेल्टा जी नोट इक्वल टू रिलेशनशिप -2.303 आर टी लॉग के, आर की वैल्यू साढ़े को गिवन है, टी गिवन है, के गिवन है साढ़े को, ठीक है। डेल्टा जी नोट सानू कैलकुलेट कर लवांगे आप, ठीक है, इस रिलेशनशिप के नाल। सो ईजिली सॉल्व हो जाए। नैक्सट आप देखा जाए इंपोर्टेंट नूमेरिकल इस चैप्टर के आ जाते कि बाद पी एच वैल्यू कैलकुलेट द पी एच वैल्यू ऑफ 0.001 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, मोलर एंड सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। सो नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रोंगर एसिड कंप्लीटली आयोनाइज दैट इज ए हाइड्रोनियम आयन, और नाइट्रिक एसिड दैट इज ए कंसनट्रेशन सानू गिवन है 0.01 एंड इट कैन बी रिटन एज 1 × 10⁻³ मोलर। पी एच का फॉर्मूला जोड़ा होंगे दैट इज ए माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन, इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू माइनस लॉग 1 × 10⁻³ -3 अगे चल जाएगा लॉग 10 तो आंसर आ जाएगा साढ़े को 3 log 10 वैल्यू 1 होती है, ठीक है। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी आप यूज़ करांगे। सो वो OH नैगेटिव आयन की सानू गिवन है। सो KW की होंगे हाइड्रोनियम आयन एंड OH नैगेटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन के लिए लिख लवां KW ओवर OH नैगेटिव आयन। सो इनू सॉल्व करांगे तो साढ़े को हाइड्रोनियम आयन की पहले कंसनट्रेशन आ जाएगी, तो बाद में हाइड्रोनियम आयन की कंसनट्रेशन ना PH आप निकाल पावांगे, ठीक है। ये लॉग के अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत आएगी तो वह जरूर मैसेज कर सकता है, ठीक है। वैसे लॉग की एक वीडियो भी बनाई हुई है, शॉर्टकट ट्रिक भी तो दूजी भी, ठीक है। नैक्सट है इंपोर्टेंट चैप्टर दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आप डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन तो वैलेंसी के डिफरेंट। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विद विच एन एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन। Sorry, the oxidation number is residual charge which an atom has or appear to have when all the atoms are removed as ion. Valency of an atom element cannot be zero and oxidation number may be fractional value. Atom combine in always a whole number and valency of element is always a whole number, and even the element carbon, nitrogen, sulfur accept the variable valencies, ठीक है। नैक्सट करते हैं आप कुछ आ जाते हैं ऑक्सीडेशन की है, रिडक्शन की है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की है, रिड्यूसिंग एजेंट की है। सो एक क्वेश्चन है साढ़े को ऑक्सीडेशन दैट इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन दैट इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इट इज ए सबस्टेंस विच एक्सेप्ट वन मोर इलेक्ट्रॉन और इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। Reducing agent है it is a substance which lose one or more electron or its oxidation number. For example, एक इक्वेशन आप लिख रहे हैं ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਕ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕੋਪਰ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਕੋਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਤੋਂ 0 ਆਕਸੀਜਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨੰਬਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨੰਬਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 0 ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। सो सैकेंड ये तो हो गया ऑक्सीडेशन तो रिडक्शन। सैकेंड स्टैप है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो रिड्यूसिंग एजेंट। जिस चीज़ से ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इनक्रीज़ कर रहा है, दैट विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है।
सिमिलरली जिस ते रिडक्शन होंदी पई है दैट विल एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल ऑपोजिट फिनोमना होएगा। ठीक है, ये वाला सानू क्लीयर होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह एग्जाम्पल है ऑक्सीजन ते रिडक्शन दियाँ। ठीक है, रिडक्शन दैट इज़ ए गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन है। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव डिक्रीज़ करता पे ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, ये सारे दे विच है। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन डायरैक्ट ते इनडायरैक्ट होंदियां। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन रिडक्शन टेक्स प्लेस इन सेम वैसल दे विच हो जाए उन्होंने डायरैक्ट कह दिंदे। इनडायरैक्ट दे विच द ऑक्सीजन द रिडक्शन डिफरेंट वैसल दे विच होवे उन्होंने आपां इनडायरैक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कह दिंदे। ठीक है जी। नैक्सट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये मोस्टली की होंगे कि ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करनी पूछी जाती है। सो ये सब तो पहला देखते जिस तरह Na2H2O3 है, ये सोडियम दैट इज़ यदि +1 चार्ज हो जाएगा, सल्फर में एक्स मान लें, ऑक्सीजन दैट इज़ -2 हो जाएगा। तो जो सोल्व करा इक्वल टू 0 क्योंकि चार्ज कोई नहीं है। 2 + 2 × 1 + 2 × x -3 × -2। ठीक है, इनू सोल्व करा तो साढ़े को आ जाएगा। सिमिलरली Na2S4O6 है, सल्फर में एक्स मान लवेंगे, सोडियम +1, ऑक्सीजन दैट इज़ -2। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 + 4 × x + -2 × 6 दैट विल एक्स में इतों सॉल्व कर लवेंगे। ठीक है, सो ये सू एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली Na2 सोडियम सल्फाइड है, Na2SO3 सिमिलरली ये भी आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सोडियम सल्फेट ये भी कढ़ लवेंगे। ठीक है, ये साढ़े बेसिक जोड़े आप ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करनी होंगी है। ठीक है जी, इंपोर्टेंट है, बार बार पेपर के भी पूछे जाते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल है VO2 वैन VO2 पॉजिटिव चार्ज है, x + 2 × -2 इक्वल टू +1 यदा चार्ज सीगा ओवरऑल इस करके +1 लिखे, एक्स वैल्यू सोल्व कर सकते। सिमिलरली UO2 2 पॉजिटिव है, x + 2 यूरेनियम का x मान लवेंगे आप इतों भी सोल्व कर सकते। वेरियम x। ठीक है, इसी तरह भी नैक्सट इसी तरह आप सोल्व कर लवेंगे। ठीक है, नैक्सट है एक इंपोर्टेंट आ जाता है, इज इट पॉसिबल टू स्टोर द कॉपर सल्फेट इन जिंक वैसल, कॉपर सल्फेट इन सिल्वर वैसल और इन निकर वैसल और इन गोल्ड वैसल। सो इट इज़ क्लीयर दैट इलैक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ कॉपर, सब तो पहले रिडक्शन पोटेंशियल सानू पता होनी चाहिए। कॉपर टू कॉपर दैट इज़ हमेशा पॉजिटिव है 0.34 वोल्ट इज़ मोर दैन दैट इज़ जिंक। जिंक के देखिए जाए रिडक्शन पोटेंशियल माइनस के होएगी, जी वैल्यू घट है। देयरफॉर इट विल रेडिली रिड्यूस टू कॉपर। ठीक है, सो कॉपर ਨੂੰ रिड्यूस कर देगा एंड जिंक विल भी ऑक्सीडाइज हो जाएगी। एज ए रिजल्ट जिंक वैसल विल डिजोल्व। ठीक है, इस करके कहता इलैक्ट्रो कॉपर सल्फेट इन जिंक वैसल। हुण देखो इन्होंने क्वेश्चन की सीगा साढ़े को कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ਨੂੰ जिंक वैसल ਦੇ ਵਿੱਚ रख सकते ਜਾਂ नहीं। मतलब की है कॉपर सल्फेट इन जिंक वैसल मतलब जिंक का वैसल है साढ़े को तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। ठीक है, सो आप दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल देखी, जिंक की देखी तो कॉपर की भी। हम जिस चीज़ के स्टोर करना होंगे जिस तरह जिंक है, जिंक का वैसल है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होनी चाहिए है, बट इतने की है यदि रिडक्शन पोटेंशियल घट है। इट मीनस की है कि जिंक विल भी ऑक्सीडाइज, ये अपनी ऑक्सीडेशन कर देगा। अगर ऑक्सीडेशन करेंगे जिंक वैसल विल डिजोल्व। ठीक है, जिंक वैसल खत्म हो जाएगा और डिजोल्व कर जाएगा, स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगेन नैक्सट है द कॉपर सल्फेट इन सिल्वर वैसल। जो सिल्वर का देखा जाए ये इट इज़ पॉसीबल टू स्टोर क्योंकि सिल्वर की रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा हैगी है तो पॉजिटिव है। ठीक है, सिमिलरली निकल के देखा जाए तो नहीं कर सकते, अगेन नैगेटिव वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली गोल्ड के स्टोर कर सकते। ठीक है, ये सी साढ़े को इस टाइप के क्वेश्चन। नैक्सट आ जाते साढ़े को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन। वट आर द टाइप्स ऑफ फिशन इन कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, फिशन होमोलिटिक तो हैट्रोलिटिक फिशन होंगी है। होमोलिटिक फिशन के दो एटम है। ठीक है, एक मॉलीक्यूल के दैट आर इक्वली डिवाइडेड, अगर एक इलैक्ट्रॉन उन्होंने कोल हो जाता है, एक दे कोल एक इलैक्ट्रॉन है दूसरे कोल दूसरा हो जाता, दैट इज़ कॉल्ड एज ए फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होंगी, होमोलिटिक फिशन कह दें। हैट्रोलिटिक फिशन के होंगे कि वो की है कि एक एटम के कोल दोनों इलैक्ट्रॉन चले जाएंगे तो कोई नैगेटिव चार्ज है तो दूजा खाली हो जाएगा। ठीक है, तो वो की एक टाइम पर अनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड ए हैट्रोलिटिक फिशन। ठीक है, नैक्सट है वट आर इलैक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इलैक्ट्रोफाइल सॉरी इलैक्ट्रोफाइल तो न्यूक्लियोफाइल की जो गल करते हैं द पॉजिटिव चार्ज और ए न्यूट्रल स्पीशीज विच आर डेफिशिएंट ऑफ इलैक्ट्रॉन एंड विच कैन एक्सेप्ट। हम देखो इलैक्ट्रोफाइल है। ठीक है, इलैक्ट्रोफाइल दैट इज़ इलैक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। इलैक्ट्रोफाइल इलैक्ट्रॉन लविंग। न्यूक्लियोफाइल
ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਲਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਵਿੰਗ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਲਵਿੰਗ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾਲ ਕੋਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਹਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੈਨ ਅਸੈਪਟ ਏ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਰ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ ਏ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग है जैसे हाइड्रोनियम आयन Cl पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, Bf3 एंड AlCl3 एग्जाम्पल। दूसरी साइड है द स्पीसीज हैविंग एन एटम हैविंग अनशेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सीकिंग पॉजिटिव चार्ज आर कोल्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल उन्होंने कह दें जिस तरह NH3 है, वाटर है, ROR है। ठीक है, साइनाइड है, X नैगेटिव है, इन्होंने आप न्यूक्लियोफाइल कह दें। ठीक है, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਹੈ, ਕਾਰਬੇਨਾਈਨ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਮੋਲੈਟਿਕ ਫਿਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ A ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, B ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ ਏ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੋ ਅਗਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਟਰੋਲਾਈਟਿਕ ਫਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਟਾਇਨ ਤੇ ਅਨਾਇਨ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਇਹੀ ਫਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ, ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਤਾਂ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਬੇ ਅਨਾਇਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ these are the product of homolysis and contain a odd number of electron at is a highly reactive planar with sp2 hybridation है। ठीक है, सो जिन्ने ज़्यादा ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਰਡਰ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰਸ਼ਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਹੈਟਰੋਲਾਈਟਿਕ ਐਂਡ ਕੰਟੇਨ ਏ ਕਾਰਬਨ ਬੇਰਿੰਗ ਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। दैट इज़ ए कार्बोकैटाइन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन इन ए वैसल। ठीक है, जिस तरह CH4 ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ H 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ CH3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਟਾਈਪ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਟਰਸ਼ਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਰਬੇ ਅਨਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲਸੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਹੈਟਰੋਲਿਸਿਸ ਐਂਡ ਕੰਟੇਨ ਏ ਕਾਰਬਨ ਬੇਰਿੰਗ ਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਂਡ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਦ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ। ਦੀਜ਼ ਆਰ have a pyramidal shape and sp3 hybridized carbon having one lone pair. The order of stability of carbanion that is a primary, secondary and tertiary ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ opposite ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਤੇ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਬਨ ਦਾ these are the divalent carbon species having 2 non bonding electron। ठीक है, 2 non bonding electron ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ like the shifting of a shared pair of electron in a polar covalent molecule. If a shared pair is more shifted toward the more electronegative atom, ठीक है, जिस तरह CH3 Cl है, and less electronegative atom acquires slight positive charge and more electronegative acquire a partial नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, जिस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होएगा तो नेगेटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इट इज़ ए परमानेंट इफेक्ट एंड प्रोपेगेट्स थ्रू ए कार्बन चेन। एटम और ग्रुप हैविंग द ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैन हाइड्रोजन आर सेड टू हैव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और नैगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जिन्ने अल्काइल ग्रुप होंगे वो वाले प्लस आई इफेक्ट इनक्रीज करते जाएंगे तो जिन्ने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होंगे वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। स्मॉलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैन हाइड्रोजन आर सेड टू हैव electron releasing or positive inductive effect plus I and Cl that is a minus I effect। ठीक है, alkyl group that is a plus I effect। so order of proceeding minus I effect ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ plus I effect ਦਾ order ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। next application ਹੈਗੀ ਹੈ inductive effect ਦੀਆਂ that the presence of group showing plus I effect increase the stability of carbocation। ठीक है, presence of group minus I effect decrease the stability। ठीक है, strength of acid increase with the attachment of group showing minus I effect ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ